غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مریدہ کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ اینٹوں اور پتھروں کے لحاظ سے تو یہ قلعہ مضبوط ہی تھا، لیکن جذبے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہ واحد قلعہ تھا جس کو محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مریدہ دارالحکومت تولیتا سے بھی زیادہ اہم شہر تھا، کیونکہ یہ مذہبی مرکز تھا اور بطریق اعظم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے عرب حاکم مقرر کیے اور عیسائیوں کو ان کے ماتحت عمال مقرر کیا، اور خاص طور پر حکم دیا کہ ہر کسی سے محصولات اتنے ہی وصول کیے جائیں جتنی اس کی حیثیت ہو، اور کسی کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ بطریق اعظم پادریوں کے مختصر سے جلوس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر سے ملنے آیا۔ اس وقت موسیٰ شہر کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ شہر میں ایک میدان تھا جو فوجیوں کی ٹریننگ، کھیلوں، دوڑوں اور میلوں وغیرہ سے استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ اس میدان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ بطریق اعظم اسے ملنا چاہتا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ امیر کس وقت محل میں آئیں گے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ موسیٰ نے دیکھا بطریق اعظم چند ایک پادریوں کے ساتھ میدان کے باہر کھڑا تھا۔ موسیٰ نے اسے وہیں بلا لیا۔ امیر عالی مقام دربار میں کس وقت بیٹھیں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ میں اپنی گزارشات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر تو ہو گئے ہیں، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہیں دربار لگا لیتے ہیں، ہم سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بندوں کا کوئی دربار نہیں ہوتا، یہیں بیٹھ جائیں۔ موسیٰ وہیں بیٹھ گیا۔ ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ بطریق اعظم زمین پر بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری کباب پہن رکھی تھی، اس کے نیچے پتلون تھی، اس کے جوتے چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں حیرت کی جھلک تھی کہ ایک فاتح سپاہ سالار جو ایک ملک کا گورنر امیر بھی ہے زمین پر بیٹھ گیا ہے، اور اس تاثر میں یہ جھلک بھی تھی کہ بطریق اعظم اپنے آپ کو بادشاہ کی سطح کا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے وہ زمین پر بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، موسیٰ نے کہا۔ ہمارا طور طریقہ یہی ہے، جہاں کسی نے اپنی کوئی شکایات یا بات یا کوئی مسئلہ پیش کیا وہیں بیٹھ گئے اور وہیں کام نپٹا دیا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ فلاں دن فلاں وقت محل میں یا دربار میں آ جائیں، میں وہاں ملوں گا تو میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے جہاں پکارو گے اور جب پکارو گے میں سنوں گا۔ اس فرمان کے بعد بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اللہ اسے رتبہ دے اور وہ اللہ کے بندوں کو ملنے کے لیے جگہ اور وقت بتا کر ٹال دے۔ میں فرعون نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ تو اپنی قوم کے امام اور پیشوا ہیں۔ اگر آپ کی قوم کا کوئی ادنا آدمی بھی مجھے راستے میں روک لے گا تو میں رکوں گا اور اس کی سنوں گا۔ بطریق اعظم زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ خدائی احکام کے پابند نظر آتے ہیں۔ بطریق اعظم نے کہا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گرجوں کی بے حرمتی نہ ہو اور ہماری عبادت پر کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ حکم میں نہیں دوں گا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، یہ اسلام کا حکم ہے کہ جس قوم اور جس ملک کو فتح کرو اس کے مذہب اور اس کی عبادت گاہوں کا احترام کرو، البتہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرو اور اس طرح کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اخلاق کا نمونہ اپنے اقوال و افعال کے ذریعے پیش کرو۔ آپ مطمئن رہیں، آپ کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے گا، لیکن میں یہ حکم دوں گا کہ عبادت گاہوں میں حکومت کے خلاف باغیانہ واز اور باتیں نہ ہوں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ اور آپ کا کوئی پادری اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں ہوگی، موسیٰ نے کہا۔
इतने दिनों से ये शहर हमारी सल्तनत में आ चुका है, क्या आपको कोई शिकायत मिली है या कोई वाकया सुना है कि किसी मुसलमान सिपाही या हाकम ने किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाला हो? नहीं। किसी मुसलमान ने किसी घर में दाखिल होकर कोई मुतालबा किया हो? नहीं। कोई और बदतहजीबी की हो? नहीं। ये है इस्लाम की तबलीग जो हम करते हैं। मूसा ने कहा, आपके वाज हमारी इस तबलीग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपके लिए एक और हुक्म जारी कर रहा हूँ, किसी ईसाई या यहूदी लड़की को जबरदस्ती राहबा नहीं बनाया जा सकेगा। मैं जानता हूँ इन लड़कियों के साथ आपकी इबादत गाहों और मजहबी इदारों में क्या सलूक होता है। और याद रखें, हम अपने साथ हुक्मनामे और शाही रोब व दबदबा नहीं लाए, हम एक नजरिया और तर्ज माशरत लेकर आए हैं। हम लोगों की जुबानें बंद करने नहीं आए, बल्कि हल्के खुदा को जुबान देने आए हैं कि वो बोलें। उनमें इतनी जुर्रत हो कि मैं गलती पर हूँ तो मेरा हाथ रोक दें और मुझे राह रास्त दिखाएं। मोरह लिखते हैं कि बदतरीके आजम मालूम नहीं और क्या कहना चाहता था, लेकिन मुसलमान अमीर की बातों ने उसको इतना मुतासर किया। उसे मुतासर करने के लिए तो यही काफी था कि एक फातेह सिपा सलार और अमीर उसकी बात सुनने के लिए जहाँ था वहीं जमीन पर बैठ गया था। बदतरीक उठा और आदाब बचा लाकर रुखसत हो गया। वालिदे मोहतरम, एक रात मूसा का बेटा अब्दुल अजीज उसे तन्हाई में कह रहा था, मुझे वो लड़की अच्छी लगी है जिसे आपके सामने पेश किया गया था। उसका नाम एजी लूना है। उसके चेहरे पर नकाब था। मूसा ने कहा, उस बारीक नकाब में उसका चेहरा बहुत हसीन नजर आता था। जरूरी नहीं कि वो इतनी हसीन हो। मैं उसके चेहरे को नहीं देख रहा मोहतरम वालिद, अब्दुल अजीज ने कहा। मुझे उसकी जुर्रत और बेबाकी ने मुतासर किया है। उंदलस के किसी जर्नैल को भी आपके सामने बोलने की जुर्रत नहीं हुई थी जिस तरह उसने बात की थी। मैंने उसके मुतल्लक यहाँ के जर्नैलों से और किलादार राजिलिफ से सब कुछ मालूम कर लिया है। दूसरे लोगों से भी पूछा है कि बड़ी ही गैरतमंद औरत है और शाही खानदान से ताल्लुक रखती है। यहाँ का हर जर्नैल, किलादार और हर बड़ा हाकम उसके साथ शादी करने के लिए हाथ पांव मार रहा था, लेकिन इस औरत ने सबसे कहा कि पहले मरीदा को बचाओ और हमला आवरों को तबाह बर्बाद करके अपने मुल्क के बाकी शहरों को भी आजाद करवाओ। उसने तो यहाँ के हर मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े के अंदर हुब्बुल वतनी और वतन पर मर मिटने का ऐसा जज्बा और अज़म पैदा कर दिया था कि क्या फौजी क्या शहरी रात को आराम नहीं करते थे। ये औरत घोड़े पर सवार, नंगी तलवार लहराती, फौज और शहर में घूमती फिरती रहती थी। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए। मेरे अजीज बेटे, मूसा बिन नुसैर ने कहा, मैं तुम्हें इस औरत के साथ शादी करने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन इसे अच्छी तरह देख भाल लो। ये शाही खानदान की औरत है और एक बादशाह की बेवा है। तुम जानते हो शाही खानदानों के लोगों का किरदार कैसा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्ल जो इस औरत के बतन से चले वो हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का बायस बन जाए। ये तुम खुद देख लो। एजी लूना को मरीदा के महल में अलग कमरे में रखा गया था। मूसा बिन नुसैर ने वादा किया था कि किसी भी यरगुमाली औरत को परेशान न किया जाए। एजी लूना के लिए तो अलग हादमा भी रखी गई थी। एक रोज हादमा ने उसे इतला दी कि अरब का एक सलार उसे मिलने आया है। बूढ़ा है या जवान है? एजी लूना ने पूछा। जवान है, हादमा ने जवाब दिया। आप ही की उम्र का लगता है, अंदर भेज दो, एजी लूना ने कहा। अब्दुल अजीज अंदर गया तो एजी लूना के चेहरे पर बारीक नकाब था। अब्दुल अजीज अपने साथ एक तर्जुमान को ले गया था। उसने तर्जुमान की मार्फत एजी लूना से पूछा कि उसे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं और क्या उसकी जरूरियात पूरी हो रही हैं। एजी लूना ने इत्मीनान का इजहार किया और पूछा कि वो कौन है और क्यों आया है। मैं सिपा सलार का बड़ा बेटा हूँ, अब्दुल अजीज ने कहा। सिपा सलार मूसा बिन नुसैर अमीर अफ्रीका हैं और अब अमीर उंदलस हैं। उनके बाद मैं अमीर उंदलस होऊंगा। आपका मेरे पास आने का मकसद? इतनी बेरुही? अब्दुल अजीज ने पूछा। क्या तुम अभी तक अपने आप को मलकाए उंदलस समझती हो? उंदलस की ना सही, एजी लूना ने कहा। मैं अपने दिल की मलका तो हूँ। ये ऐसी सल्तनत है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और ये भी याद रखो सलार, मैं एक बादशाह की बेवा हूँ, शाही खानदान में पैदा हुई थी, इसलिए मेरा रवैया इन औरतों से बहुत मुख्तलिफ है जिनकी हैसियत मुझसे कमतर होती है। वो तुम जैसे सलारों की लौंडियां और कनीजें बनने में फख्र महसूस करती हैं और मैं तुम्हें लौंडी बनाने आया हूँ ना कनीज, अब्दुल अजीज ने कहा। तुम बादशाह की बीवी थी,
बादशाह की ही बीवी बनोगी। मुसलमानों में कोई बादशाह नहीं होता, हमारा एक खलीफा होता है और उसके मातहत अमीर होते हैं। इन सब की हैसियत बादशाहों जैसी होती है, लेकिन ज़हनियत बादशाहों जैसी नहीं होती। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? अजी लूना ने पूछा। हाँ, अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली है। अगर तुम्हें कनीज या लोंडी बनाना होता तो इस वक्त तुम यहाँ ना होती, तुम्हें हम इतने दिन यहाँ मलका बनाकर ना रखते। क्या मैं बीवी बनूंगी या मलका? अजी लूना ने पूछा। अगर नकाब उठा दो तो तुम्हारे सवाल का सही जवाब दे सकूंगा, अब्दुल अजीज ने कहा। अजी लूना ने चेहरे से नकाब उठा दिया, फिर उसने सर से भी कपड़ा हटा दिया। अब्दुल अजीज ने इस जवान साल औरत के मुतल्लिक जिससे भी पूछा था, उसने पहली बात ये कही थी कि इस औरत की उम्र 30 साल से साल 2 साल कम है, लेकिन ये 20 साल की लड़की लगती है और इसके हुस्न और जिस्म की साख्त में ऐसी कशिश है कि उसे पहली बार जो भी देखता है वो अपने वजूद में झटका सा महसूस करता है और इसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर है जो देखने वालों को मशहूर कर देता है। फिर इस औरत के बोलने का अंदाज ऐसा है कि सुनने वाला ज़र खरीद गुलामों की तरह इसके इशारों पर नाचने लगता है। एक उंदलसी जर्नैल ने अब्दुल अजीज से कहा था कि इस औरत का हुस्न और दिल का इस्तिरापा बहुत ही खतरनाक है। इसने राडरक जैसे जालिम बादशाह को मोम कर लिया था। अब्दुल अजीज ने जब अजी लूना का चेहरा बेनकाब देखा तो वो जैसे चौंक पड़ा हो, दम बाहुद हो जाना इसी को कहते हैं। अजी लूना के होंठों पर तबस्सुम था, उसकी तो आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। तुम मलका बनोगी? अब्दुल अजीज के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए, इस मुल्क की मलका, मेरे दिल की मलका। क्या बाकायदा शादी होगी? अजी लूना ने पूछा। निकाह होगा, अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, इस्लामी कानून के मुताबिक। और तुम? मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी, अजी लूना ने कहा। इस्लामी कानून के मुताबिक निकाह कबूल कर लूंगी। अब्दुल अजीज को दचका सा लगा। उसने अजी लूना से कहा कि वो इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वो ना मानी। अब्दुल अजीज के ज्यादा इसरार पर उसने कहा कि कुछ अरसे बाद वो इस्लाम कबूल कर लेगी। ये एक तारीखी हकीकत है कि अब्दुल अजीज ने ये शर्त कबूल कर ली और इस राज को पोशीदा रखा कि अजी लूना ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अगले ही रोज अब्दुल अजीज की शादी अजी लूना के साथ हो गई। अब्दुल अजीज अजी लूना के हुस्न से ऐसा मशहूर हुआ कि उसने अपनी शख्सियत उसके वजूद में मदगम कर दी और जान न सका कि ये औरत थोड़े से अरसे ही बाद उसे ऐसे अंजाम तक पहुंचा देगी कि तारीख लरज़ जाएगी।